ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں، میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی معاونت کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے 21 لاکھ گھر بنانے میں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اگر آپ جائیں سندھ کے مختلف اضلاع میں، آپ کو وہ گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سندھ پیپلز ہاؤسنگ کمپنی کے ذریعے پیسے ان کو دیے جا رہے لوگوں کو۔ یہ نہیں کہ ہم خود گھر بنا کے دے رہے ہیں، ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنے گھر بنا سکیں۔ یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں گرین اکانومی کو فروغ دوں گا، اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاری کو، کسان کو 300 یونٹ بجلی مفت دوں گا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیلاب ہوا تو بلاول صاحب نے بین الاقوامی سطح پر اس بات کو شوکیس کیا کہ صنعتیں آپ کی چلتی ہیں اور گلوبل وارمنگ کے، کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں پاکستان میں فیل ہو رہے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کی اس محنت کش عوام کا تذکرہ COP 27 میں جو یورپ میں ہوئی، اس میں تذکرہ ہوا۔ اقوام متحدہ کے فورم کو بلاول صاحب نے استعمال کیا اور پہلی بار آپ تمام دوستوں نے دیکھا کہ تمام انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز نے یہ کہا کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنائیں گے کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے۔ بلاول صاحب نے اس پوائنٹ کو آرگیو کیا، لوگوں کے سامنے ایجیٹیٹ کیا کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے، میرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا صنعت کار فلرش کر رہا ہے، میرا ہاری، میرا کسان، میرا مزدور پریشان ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ نتیجہ ہوا وہ فنڈ قائم ہوا، پیسے منتقل ہونا شروع ہوئے، اور یہ پوٹینشل ہے ہمارے پاس کہ ہم اس فنڈ کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ جو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں ہاری کو، کسان کو اتنے یونٹ بجلی مفت دوں گا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا ہم نے۔ یہ سب سے پہلا اس کا اگزامپل آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے جب اسلام کوٹ تالکے میں، جو کہ تھر پارکر کا تالکہ ہے، جہاں پہ تھر کول پروجیکٹ بی بی شہید نے انویژن کیا تھا اور آصف علی زرداری صاحب نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، جب اس کا پہلا پاور پروجیکٹ تکمیل ہوا تو ہماری سندھ حکومت کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کوٹ تالکے میں ہر شہری کو 100 یونٹ مفت بجلی فراہم کی جائے گی، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا۔ ہم نے بتایا کہ کوئلہ تھر کی عوام کا ہے، یہ آپ کی میراث ہے، آپ کی چیز ہے، اس کے فوائد آپ کو ملنے چاہیے۔ تو بلاول صاحب نے ماضی میں اپنی کاوش سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنے منشور سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ اعلان کرتے کہ اتنی یونٹ بجلی مفت ملے گی تو ہاں، ہم نے تھر پارکر میں یہ چیز کر کے دکھائی۔ اور اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز میں انشاءاللہ اقتدار ملا تو ہر جگہ کرنا چاہوں گا۔ کیسے کہ تھر میں ہم نے کوئلے کے ذریعے بجلی بنائی، تو ہم باقی اضلاع میں ونڈ اور سولر کے ذریعے بجلی پیدا کریں گے۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنا سولر کا پاور پروجیکٹ لگے گا، اور اس پاور پروجیکٹ کے ذریعے وہاں کے لوکل کسانوں کو ہم ریلیف پرووائڈ کریں گے۔ بلاول صاحب کا وہ اعلان ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کراچی شہر میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کڈنی ہل جائیں گے تو پہلا میونسپل پارک، میونسپل سولر پارک آپ کی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اسٹیبلش کر دیا ہے۔ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 100 کلو واٹ کا پہلا منصوبہ ہم نے کنسیو کیا، انویزج کیا، اور اس وقت آپ جا کے وہاں دیکھیں گے تو صرف آپ کو سبزہ ہریالی نظر نہیں آئے گی، آپ کو وہ سولر پینلز نظر آئیں گے جو کہ ہم نے لگا دیے۔ اور اسی لیے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب میئر ہمارا ہوگا
वजीर आला हमारा होगा, वजीर आजम हमारा होगा, तो तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगी, तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। सिंध में सैलाब मुतासरीन की अपडेट कर रहे हैं आपको कि पीपल्स पार्टी क़यादत में वादों को पूरा करेगी। पीपल्स पार्टी ग्रीन इकनॉमी को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्ज़म है, ऐसा कहना था मेयर कराची का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मजदूर तबके की खिदमत कर सकते हैं, किसान तबके की खिदमत कर सकते हैं, गरीब मुतवसत तबके की खिदमत कर सकते हैं। ये वो तरीक़ेकार है, ये वो विजन है जो आगे की बात करता है कि कैसे आप मसाइल को हल करेंगे। आखिरी चीज़ देखें, पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो आपके अखराजात में इजाफा हुआ, आपके जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, लेकिन जो आमदनी है ना उसमें उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था सैलरीड क्लास के लिए कि तनख्वाह डबल की जाएगी, टारगेट क्या है कि उसके अखराजात तो बढ़ रहे हैं लेकिन आमदनी उसकी आगे नहीं बढ़ रही, उसकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, और इसकी वजह से डेट, लाइबिलिटी, मकरूज़ इंसान भी हो जाता है, और जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी मकरूज़ हो गया। तो इसका हल ये है कि आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की आमदनी का जो बुनियादी पिलर है वो आपका FBR है। FBR के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपके अखराजात ट्रिपल क्वाड्रिपल हो जाएं लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो डबल भी ना हो पाए, उसके अंदर इतनी चोरी हो, पिलफरेज हो, लीकेज हो, कहीं एडवर्टेंटली होती है, कहीं इनएडवर्टेंटली होती है, बट बाहर कैफ। FBR उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की, कि ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबाई सब्जेक्ट था। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक ऑर्डिनेंस के जरिए FBR इस टैक्स के ऊपर काबिज हो गई और टैक्स वो इकट्ठा करती थी। जब 18वीं आईनी तरमीम हुई तो इस मामले को वाज़ेह किया गया, इस मामले को क्लियर कर दिया गया कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अब वफाक इकट्ठा नहीं करेगा, वो सूबे इकट्ठा करेंगे। यानी कि सिर्फ सूबाई सिंध नहीं, सिंध भी करेगा, पंजाब भी करेगा, बलूचिस्तान भी करेगा, खैबर पख्तूनख्वा भी करेगा। 2010 में ये चीज़ हुई, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ सूबाई सिंध मुंतकिल हुई, हर सूबे में हुई, लेकिन मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूँगा। जब 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर ये हमें मुंतकिल हुई, तो उस साल आखिरी साल जब वफाक ने, FBR ने ये टैक्स इकट्ठा किया था, तो उसने पूरे साल में 16 अरब रुपए इकट्ठा किए थे। 2010-11 में कितने? 16 अरब रुपए, 16 बिलियन रुपीस। जब वो मुंतकिल हुआ सूबाई हुकूमतों को, तो हमने अपनी कानून साजी की 2011 में, और हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड तख्लीक किया, और पहले साल वो जो 16 अरब रुपए हमें इकट्ठा करके वफाक देता था, उस अमाउंट को बढ़ा के हम 25 अरब रुपए पे ले गए, 25 बिलियन, यानी कि 70% आपकी इनकम में इजाफा हुआ। वो 16 अरब जो इस्लामाबाद से इकट्ठा किया जा रहा था, इस्लामाबाद के बाबू इकट्ठा कर रहे थे, FBR वाले इकट्ठा कर रहे थे, उसको एक नए इदारे ने, सूबाई हुकूमत की सतह पर चलने वाले इदारे ने 16 अरब को 25 अरब कर दिया। और आज मैं फ़ख्रिया आपको कहता हूँ कि 11 साल गुजर जाने के बाद जब 30 जून के नंबर्स आप उठा के देखते हैं, तो वो टैक्स जो कि वफाक 16 अरब रुपए इकट्ठा कर रहा था, वो टैक्स बढ़ के 180 अरब रुपए पे आ गया है। 180 अरब रुपए, यानी कि
1200% आपने अपनी इनकम में इजाफा किया, 1200% 11 सालों में। और अगर आप 1999, 2000, 2001, 2002 के टैक्स फिगर उठा लें तो टोटल हजम जो एफबीआर इकट्ठा कर रही थी, आज उस हजम को शायद डबल नहीं कर पाए हैं। तो हम ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम एफबीआर में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि उसकी इनकम को, आमदनी में इजाफा किया जा सके, जो टैक्स कलेक्शन के लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके, और तमाम सूबों में कंसेंसस बिल्ड करके, वफाक में कंसेंसस बिल्ड करके, जिस तरह सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहेंगे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी सूबा इकट्ठा करें ताकि रियासत के पास आमदनी में इजाफा हो सके और रियासत के पास इतने पैसे हों कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम कर सके। ये तमाम चीज़ें जब होंगी, इसकी दो बॉटम लाइन में देना चाहूँगा। भूख मिटाना चाहेंगे, नो हंगर इन पाकिस्तान, और हेल्थ केयर। बिलावल साहब पाकिस्तान भर का दौरा कर रहे हैं, चित्राल जाएं, दीर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मुजफ्फराबाद जाएं, क्वेटा जाएं, हर जगह जिना अस्पताल के साइबर नाइफ प्रोग्राम की बात की जाती है, हर जगह NICVD की कार्डियक केयर की बात की जाती है, हर जगह गम्बट की बात की जाती है, हर जगह SIUT की बात की जाती है। ये वो इदारे हैं, अगर हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अपनी आमदनी को बेहतर किया तो हमने ऐसे इदारे क्रिएट किए, ऐसे इदारों को स्टैब्लिश किया, ऐसे इदारों को फंड किया जो कि लोगों की खिदमत कर सकें, बिला तफरीक खिदमत कर सकें। और इंशाअल्लाह जब ये इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो ये जो मंशूर के 10 नुकात मैंने आपको बताएं, ये हर नुक्ता मसाइल की निशानदही नहीं कर रहा, ये हर नुक्ता मसले के साथ हल की निशानदही कर रहा है, तकलीफ़ के साथ रिलीफ की निशानदही कर रहा है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि खिदमत सबसे आगे, बिला तफरीक खिदमत में सबसे आगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह, हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह कि ये जो खिदमत का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, और सिर्फ तनकीद की बात करने का एजेंडा नहीं है, इस एजेंडे के ऊपर, इस मंशूर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम पीपल्स पार्टी को चूज़ करेगी, पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर हो, आप दोस्तों के लिए भी बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो, और हम सब मिलकर इस मुल्क को, कौम की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मोहतरम, मेरा सवाल है, इसी मुतल्लिक सवाल है, आपने पानी पिलवाना, मईशत की बहाली के हवाले से सिवाय FBR का जो आपने जिक्र किया, कोई और ठोस कोई प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के पूरे मंशूर में? सैलाब के दौरान बैन अक़वामी सतह पर ग्लोबल वार्मिंग पर आवाज़ उठाई। बिलावल साहब ने पहले तनख्वाहों को दुगना करने का कहा। बिलावल साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हारी और किसान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी के 10 नुकाती एजेंडे पर मुझे यकीन है और आपको भी दिलाऊंगा, ऐसा कहना था मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जमात बस लीडर की तस्वीरें लगा रही है, लेकिन हम आगे का रास्ता बता रहे हैं। भूख और अफलास को कैसे खत्म किया जाए, इस बारे में कोई बात नहीं करता। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें
تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔